Sanidhi, I am told that your team is working on developing an app for translation of inscriptions on the walls of our ancient temples. This is very interesting and can really help tourists and boost tourism. How is your team doing it? Yes, sir. We are Team 6 Pixels, an all-girls team from RV College of Engineering, Bangalore. Our problem statement is optical character recognition of ancient inscriptions found on temples and its translation into Devanagari script. This problem statement is provided to us by Indian Knowledge System Division and falls under the theme Heritage and Culture. India is a land of vast heritage and culture. Our country is the mother of democracies. We have democratic traditions going back to thousands of years. For example, the democratic way of decision making in Chola Empire is described in the Uttara Merur inscription. This inscription had details about how these decision making bodies were formed. All the representatives of the society were a part of this decision making body. There is an even older inscription from the Pandya kingdom, which had details about the high moral and ethical standards required for the members of these decision-making bodies. There are several such inscriptions spread across the country, found on walls of forts, temples, and stone monuments. These inscriptions are written on copper plates and stone monuments. Understanding these inscriptions become a huge challenge even for professionals, and what to speak of the common people. There are two major issues found during epigraphy. They are lack of enough resources and enough knowledge. Our team is devising a machine learning based solution. For example, a person from Nagaland is visiting a village in Karnataka and he gets to know about the heroism of a local leader through the inscriptions on a Veerakallu and is admiring the beauty because he is able to relate to his leader from Nagaland. Another example is a student from Kashmir is visiting Kanchipuram and through her phone she is getting to know about how her ancestors lived. Our work is focused on an ancient Tamil script called Vatteluttu, which is an ancient script from 9th AD. We are developing a web-based application that will input the inscription images and give its translation into Devanagari text. To understand the nuances of our problem statement, we contacted Dr. V. Selvakumar from the Department of Epigraphy and Archaeology, Tamil University, Tanjavur. With combined effort of his research work and our team skills, we are developing a machine learning model. We are pre-processing the images and giving them into a deep learning model which will give its corresponding Devanagari translation. We are also extending our project to an audio output. The training images used in our model are the Vatteluttu character alphabet, which is a synthetic dataset created by our team by our own. While working on the project, we realized that there are very few resources available online. We empathized with this problem and found its solution. Whatever images we get on our website, we will store them on a database online which can be used by everyone like archaeologists and epigraphists for future research projects in this field. We will not conserve what we do not value and we will not value what we don't understand. The main aim of our project is to ensure that every Bharatiya is given the opportunity to know about his or her cultural heritage. Our project is a humble effort in response to your call from Lal Killa on the 15th of August and we will surely work towards it. Thank you. Jai Hind. Sanidhi और आपकी टीम, and I am told that at present you are working only on Tamil language. Yes, Are you sir. planning to expand it to other languages after this hackathon? Yes, sir, definitely. The approach followed will be same, but now for the hackathon, we are focusing on Tamil script. चलिए, congratulations Yes, sir. to your team. Yes, sir. Congratulations to your team. Thank you. मुझे बताया गया है कि अब मुझे तमिलनाडु में उपस्थित टीम के साथ बात करनी है. कौन है तमिलनाडु से? Who is speaking from Tamil Nadu? Vanakkam.
Vanakkam. Namaskar, sir. So, I'm Siri Sampagaonkar and this is my team. I'm from MIT ADT University, Pune. The problem statement that we have chosen is given to us by the Department of Empowerment of Persons with Disability, and our solution is a medical device. Knee-related problems arising due to disorders and diseases is very common. Currently, 25% of the Indian population is suffering from orthotic conditions. Not only that, around 7.1% of world's children are suffering from conditions wherein the axis of the knee is deviated from the axis of the body. Medically, इनको knock knees और bow legs के नाम से जाना जाता है. It makes it really difficult for them to walk on different terrains, even performing day-to-day activities. Our solution is named as Prerak, which is a smart knee actuator. So, what Prerak does and what makes it exceptional, it is that it is minimalistic smart knee brace. It helps in offloading about 20 kgs of body weight from the knees. The two main advantages of Prerak are that it is protective. So, अगर किसी को knee का कोई problem है, तो उसको to prevent from adversity of the knee problem, it helps in that. So, actuator, in our case, it is a device. Preventive. It is a preventive and it is a protective brace. So, for example, if a person with a problem is wearing the brace, and it also helps in traceability of the injury, that will decrease the probability of surgical interventions. अगर किसी को osteoarthritis का कोई problem है, तो फिर उनको जब भी वो कोई काम कर रहे हो तो कोई पेन आएगा, तो फिर उसका उस ऐप से लेना उसका वो अलर्ट जो भेजा जाएगा उस डिवाइस से वो ऐप में रिफ्लेक्ट होगा. सो दिस सोल्यूशन इज एन इंटीग्रेटिव सोल्यूशन. इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होंगे. हार्डवेयर इज द सेंसर्स वाला पार्ट एंड द डिवाइस वाला पार्ट, एंड द सॉफ्टवेयर इज द ऐप. तो जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहा हो या फिर कोई भी डे टू डे एक्टिविटीज कर रहा हो और एक पेन या कुछ भी सेंसेशन हो, तो वो ऐप पे दिखेगा एक अलर्ट के हिताबित. एंड आफ्टर दैट देन द पर्सन कैन गो टू अ डॉक्टर. स्पोर्ट्स पर्सन्स. Yes, sir, definitely. It is useful for fit humans as well as the person suffering from knock knees, bow knees, and other disabilities. Siri, India's medical device market is estimated to be around 88,000 crore rupees. Yes, sir. We are importing over 70% of it. We need to be self-reliant in this sector. Yes, Do you sir, feel your efforts will help the country in this area? Definitely, sir. That's what I was coming to. That the two major points is that whatever prototype that we are working on right now, अभी 5 दिन में जो भी काम होगा उसमें whatever materials and components that we need are easily available from the Indian market. तो आत्मनिर्भर भारत का जो भी एक क्राइटेरिया है वो यहीं पे फुलफिल हो जाएगा. एंड इवन इन द फ्यूचर व्हेन वी हैव टू स्केल अप, वी डोंट हैव टू एक्सपोर्ट एनीथिंग. एवरी मटेरियल इज ऑब्टेन्ड इन इंडिया इटसेल्फ. चलिए श्री, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई. बहुत बढ़िया बता रही है आपने. मुझे बताया गया है कि अब मुझे गुजरात में उपस्थित टीम के साथ बात करनी है. Yes, sir. Namaste, Honorable Prime Minister. Namaste. Shri Modi ji, and namaste one and all. The adage, every problem has a solution. क्या शुभ नाम Is the guiding आपका? mantra. So we are tech pupils comprising of myself, Viraj Marathe, and my teammate Janvi Doshi. We are students of standard 7th and we study at Dr. K.B. Hedgewar Vidya Mandir, Karapurte, Sakli, Goa. Our mentor is teacher Mrs. Milan Patil. We are the winners of SI Junior category 2022, which was organized on 12th August, and we have prepared a mobile gaming application for dementia patients. Now, what is dementia? It is a term used to describe a group of symptoms affecting memory, thinking, and social abilities severely enough to interfere with one's daily life. In India, more than 4 million people have some form of dementia. Unfortunately,
only 1 in 10 people get some form of diagnosis, treatment or care, since there is very little awareness regarding dementia in our society. My parents are doctors, so after interacting with them, I realized that dementia is a global health issue with multiple problems faced by both dementia patients and their caregivers. I've been learning programming and robotics since standard 2nd, and I'm currently pursuing my software diploma course and web development master's course. I have been always keen to solve society's problem with my programming knowledge. So when Smart India Hackathon 2022 was announced, I decided to team up with my friend Janvi and our mentor Mrs. Milan Patil to design a solution. Our mentor worked on researching on the desired data and information, while Janvi here worked on the aesthetics and designing of the app. So we all together have created an app, AgeCare, which will help dementia patients in different ways. Now let me elaborate on AgeCare. The app menu consists of mental well-being, physical well-being, and multiple other functions. In mental well-being, we have incorporated reminiscence therapy, which is the mainstay of dementia treatment. It involves the discussion of previous events and activities with props such as photographs, videos, etc. Our app has art therapy, games, music, and video, which will help cause cognitive and behavioral improvement and provide an outlet for self-expression. The hyperlocal communication system, diary, daily prarthana, and wellness quotient modules of our app will help keep a positive frame of mind. Our app also has modules for yoga and meditation, which will help improve the function of brain parts that control mood, memory, and attention. If the patient forgets to take their medicine, are you in touch with any yoga institute, Viraj? What, sir? Are you in touch with any yoga institution? So I talked with an yoga expert for putting some yoga asanas related to old age and all. So if the dementia patient loses track of his phone or forgets to take the medicine, our alarm system, which is built using Arduino, can be used to alert them and remind them to contact their caregiver. We have made a provision to control the patient's app with a separate caregiver's application remotely. Our app is minimalistic and simple, and it's a light app, which means it does not need or use a lot of RAM and CPU power. People who are not well versed with mobile applications can also access it effortlessly. Our app is fully functional and can be utilized for any dementia patient. Our USP is that we have created 2 different applications for the dementia patients and caregivers, as well as keeping in mind the difficulties faced by both of them. We would like to express our gratitude towards everybody associated with Smart India Hackathon for providing a platform and an opportunity to even rural students like us. I would like to conclude with a quote from Sant Jnaneshwar. Duritanse timira jao, Bhishma swadharme surye pao, jo je vanchila to te lao, prani jata. Which means, may the darkness of ignorance disappear, may the universe see the sun of self-consciousness, and may the aspirations of all living beings be fulfilled. Dhanyavad. Janvi, would you like to add anything? I want to show app. Well, it is very difficult to see, but I will talk to my team that they will get it and they will show me. Okay, sir. Okay, congratulations to your young team. Thank you, sir. आइए अब दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं. प्रणाम सर, मैं हूं अनिमेश मिश्रा, टीम डेटा क्लैन से, और हम हैं बीआईटी मिश्रा रांची से. हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट डीप लर्निंग बेस्ड साइक्लोनिक इंटेंसिटी एस्टिमेशन फ्रॉम इनसैट 3D IR. अनिमेश, आप है कहाँ से? मैं हूं बीआईटी मिश्रा रांची, झारखंड. हम सभी जानते हैं कि साइक्लोन जो है काफी क्षति पहुंचाती है मैनकाइंड को. इसको ताकि इसकी क्षति कम हो, हमें इसी अर्ली मॉनिटरिंग सिस्टम की सख्त आवश्यकता है. हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से. डीप लर्निंग इज एक्चुअली अ टेक्निक इन विच वी मिमिक अ ह्यूमन ब्रेन. We are using deep learning to actually
generate all the features and patterns of cyclones and then use it for our prediction. Our model works and outperforms most of the state-of-the-art techniques. What we are doing is we are taking some ready satellite images and mapping using deep learning. We are mapping these satellite images with their corresponding intensities. With this application, with this process, what we are doing is we can actually estimate what would be the maximum impact of these cyclones, so that we can take early action. Where could be the landfall, what would be the trajectory of cyclones, and what would be the destruction that would be caused by these cyclones. And this could easily be early predicted and be used by other अनिमेश आप जो इस पर काम कर रहे हैं, एक तो कब से काम कर रहे हैं, अब तक कितने साइक्लोन को मॉनिटर किया है और एक्यूरेसी का लेवल क्या है? जी सर, बिल्कुल। हमने साइक्लोन जो है, सिंस हमने इनसैट 3D डेटा से ले रहे हैं, तो हमने उन साइक्लोन्स को लिया है जो 2014 के बाद इंडियन कोस्टलाइन को हिट कर रहे हैं। एंड हमारा जो एक्यूरेसी है वो 89% के आसपास है सर। अच्छा अनिमेश, क्या आपके एल्गोरिदम के लिए आपको पर्याप्त डेटा मिल गया है क्या? क्योंकि अल्टीमेटली बिना डेटा तो आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। जी सर, बिल्कुल। हमें डेटा थोड़ा कम मिला है, बट सर हमने और तकनीकी यूज की है ताकि इन कम डेटा में भी हम पर्याप्त आउटपुट दे सकें और एक्यूरेसी दे सकें। सर इसके अलावा हमने एक वेब एप्लीकेशन भी डेवलप किया है, तो जिसमें कि हम सारे उन फीचर्स को दिखा रहे हैं साइक्लोन के जो ज़रूरी हैं, एंड जो देखकर जिसकी फोरकास्टिंग की मदद से इन बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके सर। एंड उसके अतिरिक्त हम साइक्लोन की पाथ बताते हैं और कहाँ ट्रेजेक्ट्री हो रही है साइक्लोन की, ये सारी इंफॉर्मेशन हम उस वेबसाइट पर देते हैं। इसके अलावा हम विंड पैटर्न्स के बारे में भी बताते हैं उस वेबसाइट पर। चलिए अनिमेश, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया गया है कि अब मुझे पश्चिम बंगाल में उपस्थित टीम के साथ बात करनी है। थैंक यू सर। नमस्ते प्रधानमंत्री महोदय। नमस्ते प्रियांश। अच्छा, देगापुर सेंटर पर आप एक सिस्टम बना रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया, जिसमें पुलिस रेडियो सेट पर ही मल्टीमीडिया डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा हुआ तो पुलिस के संचार में एक नया आयाम जुड़ेगा। आप लोग कैसे इस पर काम कर रहे हैं, जरा समझाइए। जी सर, it would be an honor to share our project with you. I'm Priyansh Diwan from Team Sarvag and we are from VIT Bhopal University. Our problem statement was given by a police department to enable transmission of multimedia data, that is images and videos, through radio waves. As we know that there are lakhs of radio handsets currently deployed in the field, but the limitation to them is that they only enable voice through that voice transmission. Most of the images and videos transmitted by police institution are done on foreign third-party applications, with which comes their own security and privacy issues. Also, neither these apps are made nor their server are maintained indigenously. Our project aims to develop a secure interface through which we can transfer videos and images through radio waves without the support of internet from one point to another, hence making... अच्छा, ये बताइए प्रियांश कि क्या आपका ये मॉडल सेना और सीमाओं पर भी इस्तेमाल हो सकता है क्या, बॉर्डर एरियाज में? जी सर, इसमें इंक्रिप्शन हम यूज करते हैं, जिससे जो डेटा आप ट्रांसमिट करेंगे वो इंक्रिप्टेड रहेगा। तो सेंसिटिव एरियाज जहां इवन सिग्नल इंटरसेप्ट होने के चांसेस भी हैं, वहां भी ये इजीली डिप्लॉयबल है। तो बिल्कुल सर, ये बॉर्डर एरियाज में भी हमारा हेल्प करेगा। देखिए, जितना मैं समझा आपने बताया, आप अभी तो सिर्फ शायद इमेज ट्रांसफर पर काम कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि आप इसे विस्तार देकर छोटे छोटे वीडियो ट्रांसफर तक भी ले जाएं? क्या आप लोग इस विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं क्या? जी सर, हम इस विकल्प पे विचार ही नहीं बल्कि काम भी कर रहे हैं। वीडियोस और इमेजेस ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर वीडियोस में आपको हर एक फ्रेम को एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग कंप्रेस करना पड़ता है। हम उस पर काम कर रहे हैं और हम ये एम करते हैं कि कल इस हैकाथॉन के खत्म होने से पहले हम वीडियो ट्रांसमिशन भी इनेबल कर पाएं। वाह तो आपकी टीम बहुत स्पीडी काम करती है। यस सर। चलिए, बधाई आपको। अच्छा, मुझे बताया गया है कि अब मुझे
असम में मौजूदा टीम के साथ बात करनी है। जय हिंद प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मेरा नाम नितेश पांडे है। मैं AKGEC गाजियाबाद का छात्र हूँ और मैं टीम आइडियल बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी गई है वह यह है कि ग्रास रूट इनोवेटर्स के लिए हमें IPR रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है। पूरी दुनिया में भारत को सबसे ज्यादा इमेजिनेटिव और इनोवेटिव कंट्री माना जाता है। हमारे देश की रिसर्च रैंकिंग टॉप 10 में आती है, परंतु ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हम 40वें स्थान पर हैं। प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी एक वजह यह हो सकती है कि हमारे देश के 65% रिसर्चर केवल IPR फाइलिंग प्रोसेस को जानते हैं। ऐसा करिए नितेश, मुझे आप अभी जिस पर काम कर रहे हैं उसके लिए बताइए। पूरा एनालिसिस तो बाद में देख लेंगे। हाँ सर, तो हम जो ग्रास रूट इनोवेटर्स के लिए हम एक पूरा ऐप बना रहे हैं जिसमें हम जो टीडियस प्रोसेस ऑफ फाइलिंग IPR है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि सर ये जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लेक्स होती है। तो एक छोटा जो एक ग्रास रूट इनोवेटर है वो उसको आसानी से फाइल नहीं कर पाता है। तो हम अपने ऐप के थ्रू अपने कुछ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। उनके जो आपके उत्पाद है, आपके प्रॉपर्टी है, विस्तार से बताइए कि आपके ऐप से कैसे इन इनोवेटर्स को मदद मिलेगी, जो यूजर है उसको कैसे मदद मिलेगी। सर, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि हम एक पेटेंट फाइल करना चाहते हैं, तो पहले क्या होता है कि आपको तो ये नहीं पता होता है कि पेटेंट, पहले तो उसके बारे में जानना होता है। तो हम अपने ऐप के थ्रू पहले तो उन्हें सिखाएंगे कि हाँ पेटेंट क्या होता है, उसे आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद जो उसकी प्रोसेस है फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स जो होते हैं उन्हें फाइल करने के, तो हम उनको पहले तो गाइड करेंगे। और जो फॉर्म की जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है ई-फॉर्म्स के थ्रू। तो उसमें वो आसानी से फिल करके फॉर्म्स प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डाउट आता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमने उसका भी एक सॉल्यूशन दे रखा है कि आप पर्टिकुलर टाइप के एजेंट्स और लोग हैं जिनसे आप कांटेक्ट करके और अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्यूट कर सकते हैं। चलिए, आसाम आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर मदद कर रहे हैं आप। आइए अब हम उत्तर प्रदेश चलते हैं। कौन है उत्तर प्रदेश में? नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। अंशित, मुझे बताया गया कि आप लोग क्राइम हॉटस्पॉट मैपिंग और प्रिडिक्शन मॉडल बना रहे हैं। जरा समझाइए भाई क्या है। तो सर, मैं शिवनाथ यूनिवर्सिटी से हूं और मैं टीम आइरिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दी गई है और उसका टाइटल है क्राइम हॉटस्पॉट प्रिडिक्शन एंड मैपिंग। इस प्रॉब्लम से हम एक ऐसा टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स मैप पर ये देख पाएं कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पर क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको जान के पुलिस ऑफिसर्स बेटर अप्रोचेस ला पाएंगे, जिससे कि वो इन क्राइम हॉटस्पॉट एरियाज पे क्राइम्स रिड्यूस कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हुए जो सबसे पहले हमारे को दिक्कत फेस हुई थी वो ये थी कि हमारे पास कोई डेटा सेट अवेलेबल नहीं था। तो इसके लिए हमने एक सिंथेटिक डेटा सेट क्रिएट किया। तो हमारे को जो डेटा मिला वो शिकागो शहर का था, जो कि USA में है। हमने उस डेटा सेट को उठा के दिल्ली के ऊपर सुपर इम्पोज करा और उसके बाद हमने रिसर्च करी कि इंडिया में जो क्राइम डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेशियो क्या है। तो हमारे को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूशंस मेंशन थी। तो हमने 2019 की डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हुए अपने डेटा सेट में ये डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर दी। ये डेटा सेट रेडी करने के बाद हमने डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लोर करे और फाइनली हमने देखा कि हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का प्रयोग करेंगे। हमने क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स का यूज करा। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स बेसिकली ये होते हैं कि जब बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास होते हैं तो उसमें कैसे हम डिफरेंट ग्रुप्स को एनालाइज करें जिससे कि डिफरेंट क्लस्टर्स फॉर्म हो जाएं। तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम में भी यही है कि हमारे पास बहुत सारे क्रिमिनल डेटा की लोकेशंस हैं एंड उसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स को देखना चाहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाना चाहते हैं जहाँ पे क्राइम हॉटस्पॉट हो सकता है।
अच्छा अंशित, ये जो आपका मॉडल है वो कितना फ्लेक्सिबल है? क्या आप इसे और बेहतर बना सकते हैं जिससे अपराधियों के बारे में और तेजी से जानकारी मिल सके? दूसरा, ये ड्रग की जो दुनिया है, जो हमारी युवा पीढ़ी तक बहुत तेजी से ट्रैवल कर जाती है, वो क्राइम का एक अलग ही रूप है। उन चीजों तक जाने की संभावनाएं हैं इसमें? सर, हमने शुरू से ही अपना जो मॉडल बनाया है उसमें ध्यान रखा है कि हमारा मॉडल हर तरीके की जगहों का ध्यान रख सके। तो हमारा मॉडल बहुत स्केलेबल है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत एरियाज हैं जो कि रूरल हैं और सिटी के भी एरियाज हैं। तो हमारे मॉडल को इस सबसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमारे मॉडल को जिस तरीके का डेटा सेट दिया जाएगा, जिस तरीके का क्रिमिनल डेटा सेट दिया जाएगा, उस बेसिस पे वो उस एरिया पे प्रिडिक्शंस कर पाएगा और क्राइम हॉटस्पॉट्स दिखा पाएगा। अंशित, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आइए हम पंजाब चलते हैं। नमस्कार आदरणीय सर। नमस्ते सर, मेरा नाम हरमनजोत सिंह है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और जोधमल पब्लिक स्कूल जम्मू में पढ़ता हूँ। मैं एक सर्टिफाइड फुल स्टैक डेवलपर, ओलंपियाड मेडलिस्ट, MIT USA ऐपाथॉन का विनर और एक स्टेम एंथुजियास्ट भी हूँ। मैं इस साल के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर एडिशन का विनर भी हूँ। So, based upon my research, I developed this innovative smart glove that can basically monitor our real-time health vitals based on an advanced technology called as Internet of Medical Things. It uses 7 smart, contactless and wireless biomedical sensors like digital temperature sensor, photoplethysmography optical sensor and electrodermal activity sensor that helps us to monitor our health vitals like the mental health, heart rate, blood pressure, oxygen saturation level, emotion or mood detection, tremor or shaking in the hands, and body temperature. Sir, I have fitted all of these sensors inside a 3D printed case which is embedded in the glove. That also I got designed and I got it printed myself through CAD technology, also called as computer aided design. So inside this glove, I have also used a microcontroller that basically controls and records the data from all the sensors. And then sir, the recorded health vitals are transmitted to a cloud database using either Bluetooth or Wi-Fi connection and then displayed in the form of graphs on a mobile application using data analysis programs or algorithms that I designed myself. So I have also tried to implement hardware, software, electronic skills to form an internal circuitry of all the sensors and the components that I have used in the glove as mentioned. And sir, my smart wearable glove is unique because it integrates both hardware as well as software to create a system that can be used by the people who just want to monitor their health, or it can also be used by patients, caregivers, family members as well as doctors from anywhere and at any time. Sir, I am extremely thankful to Smart India Hackathon for providing me this golden opportunity so that हरमनजोत, सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, आप विजयी हुए इसलिए मैं बधाई देता हूँ। आपके साथ आपके फैमिली के लोग हैं क्या? यस सर, मेरे मम्मी पापा बैठे हैं। हाँ, मुझे दिख रहा है। चलिए, मेरी उनको भी बधाई है कि वो आपको इस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं और आप इस काम को कर रहे हैं। आप टीम समिधा से भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते भाग्यश्री, कैसी हैं आप? I'm fine sir, how are you? What is the innovation of your team? Sir, basically we are asked to make a smart fuel monitoring system for ships and vessels, and our problem statement was given by Ministry of Ports, Shipping and Waterways. So sir, now we know that 90% of the cargo transportation takes place through seaways, and making it one of the largest means of cargo transportation. And as we know that statistical data shows that 250 tons of fuel is approximately used by a ship per day, making it one of the most stolen commodities in the world. So our concept, Samida, is to eradicate these discrepancies that are taking place in the current system
by integrating machine learning models with satellite technologies. So due to the unavailability of data set, we have used the open source data set and we have synthesized that data. We have used it in predictions and analysis of that data, and it's beautifully put in a graphical format in this application Samhita. Samhita aims to achieve unmanned maritime monitoring system, and when we mean unmanned maritime monitoring system, it is that it provides a platform where a ship owner or a shipping organization can get access to real-time monitoring of all of the functionality of ship, like fuel and ton and cargo handled, and also distance traveled and so on. And our aim is to get the data from pre-existing sensors and store it on the cloud, and then bring it back to the website where the prediction and analysis is done. Tell me, can we extend this smart monitoring to the other sector also? Yes, sir. We can extend it to ships, fuels, and also cars. But then cars is also pre-existing. Only ships is not that much prevalent in the market. चलिए, आपका इनोवेशन, आपका टैलेंट अमृत काल में देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। आप सभी युवा साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करूंगा हम सभी को संबोधन करने के लिए। युवा साथियों, वाकई आप सभी इनोवेटर्स से मिलकर बात कर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे नए नए विषयों को आप छू रहे हैं। आप जैसे युवा अपने कार्यों में जो नवीनता लाते हैं, जिस आत्मविश्वास से आप अपना काम करते हैं, ये मेरे जैसे अनेक लोगों के लिए कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा बन जाते हैं। तो एक प्रकार से आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत बेहतरीन उदाहरण बन चुका है। और साथियों, इस बार का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब से कुछ दिन पहले ही हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के 100 वर्ष होने पर हमारा देश कैसा होगा, इसे लेकर देश बड़े संकल्पों पर काम कर रहा है। इन संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान, इसके उद्घोष के ध्वजावाहक आप इनोवेटर्स हैं। अमृत काल का ये 25 वर्ष का टाइम पीरियड आपके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं लेकर आया है। ये संभावनाएं और ये संकल्प सीधे सीधे आपके कैरियर ग्रोथ से भी जुड़े हैं। अगले 25 वर्ष में आप युवाओं की सफलता भारत की सफलता को तय करेगी। इसलिए मैं आप सभी को लेकर बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं। हिंदुस्तान गर्व करता है आप पर। आप सभी का इनोवेटिव माइंडसेट आने वाले 25 वर्षों में भारत को टॉप पर पहुंचाएगा। आप सभी पर मेरे इस विश्वास की ठोस वजह भी है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा कि भारत में कितनी बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आज विकसित हो रही है, विस्तार हो रहा है। इस अमृत काल में ये एस्पिरेशनल सोसाइटी एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगी। इसकी अपेक्षाएं, इसकी उम्मीदें, इससे जुड़े हुए चैलेंजेस आपके लिए बहुत सारे नए अवसर लेकर आएंगी।
साथियों, आप सभी ने अपनी शिक्षा के शुरुआती दौर में पढ़ा होगा कि 60-70 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। भारत के किसानों ने अपना सामर्थ्य दिखाया और हमें अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि पिछले 7-8 वर्षों में देश एक के बाद एक रिवॉल्यूशन करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज हेल्थ सेक्टर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टैलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, आज देश का जोर हर सेक्टर को आधुनिक बनाने पर है, हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर है। और इसलिए ही आप सभी युवाओं के लिए भारत में हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेली कंसल्टेशन, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस, वर्चुअल सॉल्यूशंस, इन सभी में सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं। आप जैसे युवा खेती और हेल्थ सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए नए सॉल्यूशंस पर काम कर सकते हैं। अपने सिंचाई के उपकरणों को, सिंचाई के नेटवर्क को हम स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं। साथियों, आज देश के गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम तेज गति से चल रहा है। आपने ये भी देखा है कि अब भारत में 5G लॉन्च हो रहा है। इस दशक के अंत तक हम 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। गेमिंग और एंटरटेनमेंट में भी भारतीय सॉल्यूशंस को सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इन सारे नए सेक्टर्स पर सरकार जिस प्रकार निवेश कर रही है, जैसे उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, उसका लाभ आप सब नौजवानों को जरूर उठाना चाहिए। और साथियों, आपको एक बात और याद रखनी है, दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी है जिनकी समस्याएं भारत जैसी ही है, लेकिन वहां उन समस्याओं को डील करने के लिए इनोवेशन और स्टार्टअप्स की संभावनाएं सीमित है। भारत के इनोवेशन दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव, एफोर्डेबल, सस्टेनेबल, सिक्योर और बड़े स्केल पर लागू होने वाले समाधान देते हैं। इसलिए दुनिया की उम्मीदें भारत में हैं, आप जैसे युवाओं से हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिक्षा जगत के दिग्गज, पॉलिसी मेकर्स भी जुड़े हुए हैं। भारत में इनोवेशन का कल्चर बढ़ाने के लिए हमें 2 बातों पर निरंतर ध्यान देना होगा: सोशल सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। आज हम देख रहे हैं कि इनोवेशन और एंटरप्राइज को लेकर समाज में बदलाव दिखने लगा है। हम करियर बनाने के पारंपरिक विकल्पों के अलावा नए क्षेत्रों में भी हाथ आजमाने लगे हैं। यानी समाज में इनोवेशन एज ए प्रोफेशन, इसकी स्वीकृति बढ़ रही है।
ऐसे में हमें नए आइडियाज और ओरिजिनल थिंकिंग को भी स्वीकृति देनी होगी, सम्मान देना होगा। रिसर्च और इनोवेशन को वे ऑफ वर्किंग से वे ऑफ लिविंग बनाना होगा। साथियों, रिसर्च और इनोवेशन की दिशा में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनोवेशन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करने का रोड मैप है। अटल इंक्यूबेशन मिशन के तहत स्थापित हो रही अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में इनोवेटर्स की एक नई पीढ़ी को तैयार कर रही है। देश में आई क्रिएट जैसी संस्थाएं भी सफलता के साथ काम कर रही हैं, जो अब तक 500 से ज्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट कर चुकी है। साथियों, 21वीं सदी का आज का भारत अपने युवाओं पर भरपूर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि आज इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बढ़ गई है। पिछले 8 वर्षों में पेटेंट की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। यूनिकॉर्न की गिनती भी 100 के पार चली गई है। हम इसमें यकीन नहीं रखते हैं कि सिर्फ सरकार के पास ही समस्याओं का समाधान है। आप देखिए, मैंने तो सरकार को आपके पास लेके आया हूं। सरकार की इन समस्याओं का मेरे नौजवान सॉल्यूशन दे, और आप दे रहे हैं। आपके सामर्थ्य को मैं भली भांति समझता हूं। आज की यंग जनरेशन ज्यादा तेज और स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ आगे आ रही है। इस हैकेथॉन के आयोजन के पीछे एक मकसद ये भी है कि सरकार की जिन समस्याओं का समाधान चाहती है, उसे यहां देश भर से आए मेरे नौजवान साथी समस्या को समझे, समस्या के कारणों को समझे और समस्या से मुक्ति का रास्ता भी ढूंढे। युवा इसे सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोलैबोरेशन की ऐसी ही स्पिरिट, सबका प्रयास की ये भावना विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इनोवेशन के इस दिए को ऐसे ही प्रज्वलित करते रहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके परिश्रम को, आपके प्रयासों को सरकार का निरंतर साथ मिलेगा। सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। मैं फिर एक बार आप सभी नौजवानों को, वैसे आपके पास इतना सारा कहने को है, आप लोगों ने घंटों अपना दिमाग खपाया है। आपको सुनना ये भी मेरे लिए अपने आप में बहुत कुछ सीखने का कारण बनता है। आप में से बहुतों के पास बहुत कुछ है, मैं सबको नहीं सुन पाया। कुछ ही प्रातिनिधिक तौर पर कुछ नौजवानों से बात की। जिनसे बात नहीं हुई है, उनका भी काम कम नहीं है, उनका प्रयास कम नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं डिपार्टमेंट के द्वारा उसका पूरा ब्रीफिंग लूंगा और आप लोगों ने जो काम किया है उसको मैं समझने का प्रयास करूंगा। अच्छा होता, समय ज्यादा होता तो मैं आपसे भी बात करता, लेकिन जिनसे बात नहीं हुई है उनका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर एक बार आप सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और सरकार के काम में सरकार साथ खड़े होकर के जनता की भलाई के इस अभियान में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। आपको शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।